Hello everyone. So you know that I am doing Indian Polity by Laxmikanth. We are dealing chapter number 4, which is nothing but is the preamble of Constitution. This is the last part for this chapter. Okay, this is about myself. So let's see preamble of the Constitution. Today we'll finish this chapter. Okay, so let's start the last part of preamble of the Constitution. Okay, so till if you remember the previous class, we have done, there is a lot of keywords which is given in the preamble itself, which is, integrity, secular, socialist, fraternity, republic. Lot of word was there. So we have seen the meaning of that. Okay. Now we'll see some more things like significance of preamble, like what are the amendments has been done in the preamble, etc. These things we have to see, which is given in the Laxmikanth. Okay, so let's see the significance of the preamble. The preamble embodies the basic philosophy and fundamental values, political, moral and religious, on which the constitution is based. देखिए अब जो हमारा preamble इसका फिलोसफी क्या है, ये अगर आप इसको पढ़ते हो तो सीधा सीधा समझ में आता है हमें कि ओके व्हाट आर आवर फंडामेंटल वैल्यूज, व्हाट political, so not only the fundamental values like political, moral and religious, which is given in the constitution. Okay, so if you read this you will come to know that okay, this is like these things will get in the constitution. अभी हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था, उसमें किसी ने बोला था कि इट इज लाइक आइडेंटिटी कार्ड. ओके, सो the meaning is like that. Okay, so the basic philosophy and the fundamental values is nothing but is the political, moral, religious, on which the constitution is based. Okay, अब देखिए ये कई चीजें ऐसी होती है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, उसको अननेसेसरली मैं खींच के फालतू का एक्सप्लेन करूं इज नो मीनिंग. ओके, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधा पढ़ के भी समझ में आता हो कि इसकी मीनिंग ये होगा, तो उसको मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है. मुझे जहां पे लगेगा, जहां पे लगता है बताना, वहां पे मैं बताता हूँ. ओके, सो या it contains the grand and noble vision of Constitutional Assembly, ठीक है, and reflect the dreams and aspiration of the founding father of the Constitution. ठीक है, जो भी हमारे फाउंडिंग फादर्स थे वो लोग भी जैसा सोचते थे, जैसा उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था वैसा उन्होंने बनाया. ओके, वो सारी चीजें हमें प्रियम्बल में दिखती हैं. ठीक है, in the word of Sir Alladi Krishna Swamy Iyer, a member of a Constitutional Assembly, who play a significant role in making the constitution, the preamble to our constitution express what we had thought or dreamed so long. ठीक है, मतलब इनका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का ऐसा कहना था कि हम, मतलब हमारा जो preamble है वो ऐसा बताता है, ऐसा एक्सप्रेस करता है क्या हम सोचते हैं और क्या हम ड्रीम करते हैं फॉर लॉन्गर टाइम. According to K.M. Munshi, a member of drafting committee of Constituent Assembly, the preamble is a horoscope of our sovereign democratic republic. इनका ये कहना था जो K.M. Munshi जी थे. Now some more significance. Pandit Thakur Das Bhargav, another member of Constituent Assembly. देखिए ये सब चीजें जो है ना कि किसने क्या बोला था, ये भी एग्जाम में आ जाता है कि हाँ ये किसने हॉरोस्कोप वाला किसने बोला था, या फिर उससे पहले जो अय्यर वाला देखे थे उसको किसने बोला था. ऐसे वो स्टेटमेंट भी दे देते हैं. यूपीएससी में भी मैंने देखा है क्वेश्चन. ठीक है, तो अब ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसने ये चीज बोला था. ठीक है, सो पंडित ठाकुर दास भार्गव, अनदर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, sum up the importance of the preamble in the following words. The preamble is the most precious part of the constitution. ठीक है, it is soul of the constitution, it is a key to the constitution, it is a jewel set in the constitution, it is a proper yardstick with which one can measure the worth of the constitution. अब ये छोटा छोटा लाइन है, मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है. जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती होगी वो समझ सकता है. You can just read. Okay, इनका क्या कहना था, सिंपल चीज है, कुछ नहीं. इट इज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है. इट इज अ की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का की है.
आप पढ़ के भी समझ सकते हो, ठीक है। सर अर्नेस्ट बार्कर और डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इनका ये कहना था, पेड अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द political wisdom of an author of the preamble. He described the preamble as the keynote to the constitution. अब ये बोलते थे कि it is a keynote to the constitution. जैसे अब कोई जो लोग PhD वगैरह करते हैं तो वो जो पेपर पब्लिश करते हैं ना, तो उससे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो अब मान लो पेपर इवन 30-40 पेज का भी है, तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है 150 वर्ड 200 वर्ड का होता है। अब जब एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ओके ये चीज दिया हुआ है, इसमें ये पेपर इस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो सेम हमारा प्रियम्बल, इट इज लाइक एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड उन लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा जो लोग को नहीं पता होता है रिसर्च पेपर के बारे में, ठीक है। तो इट इज लाइक एब्स्ट्रैक्ट। अब जैसे ही हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ओके ये चीज हमारे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी तरीके से जब हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये चीज हमें दिया हुआ है पेपर में, ठीक है। पेपर मतलब एग्जाम का पेपर नहीं, तो इट्स अ रिसर्च पेपर, ठीक है। ही डिस्क्राइब्ड द प्रियम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। He was so moved the text of the preamble that he quoted it at the opening of his popular book Principle of the Social and Political Theory in 1951, ठीक है। अब इन्होंने ये सब चीजें जो कोट किया था, इनके ये जो बुक थी एक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। अब देखिए इसमें, अब ये जो इसको याद रखिए, ये बुक किसने लिखा था, ओके। ये स्टेट PSCs में जब उनको फैक्ट पूछना होता है, they can ask anything, so they can ask like who is the author of this book, okay. So it's a Principle of Social and Political Theory 1951, which is written by the Sir Ernest Barker. M. Hitadullah, a former Chief Justice of India, observed preamble resembles the Declaration of Independence of United States of America, but is more than a declaration, ठीक है। अब जो हमारे यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रियम्बल दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि जो हमारे हदुल्ला थे, ये ही वाज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये बोल रहे थे कि जो प्रियम्बल इज अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूएस है, बट हमारा जो प्रियम्बल इज मोर देन दैट। वो सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं है, इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, विच ले डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, ठीक है। और ये जो है हमारा पॉलिटिकल सोसाइटी है उसके पैटर्न को दिखाता है, ठीक है। इट कंटेन्स अ सोलम रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रिवोल्यूशन कैन अल्टर, ठीक है। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन था इस टाइप का था, ठीक है। नाउ अब देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद कई बार ऐसा कई केसेस हुए कि हमारा जो प्रियम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, कुछ लोग बोलते थे है, कुछ लोग बोलते थे नहीं है, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा, ठीक है। तो वही चीज, प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो विल सी what is given in this. One of the controversies about the preamble is as whether is the part of the constitution or not, okay. In the Beruberi case 1960, okay, the Supreme Court said that preamble show the general purpose. इंडिपेंडेंस होने के बाद कई बार ऐसा होता था कि ये preamble हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, क्योंकि ये किसी आर्टिकल में दिया नहीं है, ये एकदम स्टार्टिंग में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये है कि नहीं है, ठीक है। अब एक केस हुआ था 1960 में, विच इज नोन एज बेरीबरी यूनियन केस। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज दस अ की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द where the terms used in any articles are ambiguous or capable of more than one meaning. Some assistance at interpretation may be taken from the objective enshrined in the preamble. Despite this recognition of the significance of the preamble, the Supreme Court specifically opened that the preamble is not part of Constitution.
मतलब जो बेरी यूनियन केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, अब हमारा जो प्रियम्बल है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब अब जैसे जो भी चीजें आर्टिकल्स में दी हुई हैं उसको एक तरह से जैसे ये समराइज करता है, ठीक है, तो इसको वैसे नहीं मान सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस वाले केस में 1960 में इट्स सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आप याद रखिएगा, ठीक है, मैंने देखे कई क्वेश्चन देखे हैं कि किस केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेरी यूनियन केस, ठीक है, ये मैंने इसी वजह से इसको अलग कलर में कर दिया है सो दैट यू कैन रिमेंबर, ओके, इन द बेरी केस। उसके बाद देखिए एक और केस हुआ था 1973 में, विच इज केस वन भारती केस, विच इज वेरी फेमस केस। दोज हु हैव हर्ड, जो भी इंडियन पॉलिटी पढ़ता है उसको शुरू में तो नहीं पता होता, बट बाद में पता चलता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ओके, इन द इंडियन हिस्ट्री after independence, you can say that. In the case one and Bharti case, 1973, the Supreme Court rejected the earlier opinion. देखिए कई बार ऐसा ईयर हमें कंफ्यूजन रहता है, तो 1973 में हमारे जो सचिन तेंदुलकर है उनका बर्थ ईयर भी है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। एनीवे, जस्ट जोक्स अपार्ट, in the Kesavan and Bharti case of 1973, the Supreme Court rejected the earlier opinion and held that preamble is the part of Constitution. अब इस वाले केस में, केसवन एंड भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट अपना ही जजमेंट पलट दिया और बोलता है कि इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेरुबरी केस में बोला कि नहीं है, केसवन एंड भारती केस में बोला है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द preamble is the extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble, ठीक है। अब वो और ज्यादा स्ट्रेस करके बोल रहे हैं कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा जो हमारा इंटरप्रिटेशन है और जो भी हमारे नोबल विजन्स हैं वो सब कुछ एक्सप्रेस करता है हमारा प्रियम्बल, ठीक है। In LIC of India case 1995, also the Supreme Court again held that the preamble is the integral part of the Constitution, ठीक है। तो ये तो 1973 में केसवन एंड भारती केस में बोल दिया कि yes, this is the part of the Constitution, ठीक है। बट इन LIC of India केस 1995, अब देखिए ये सब केसेस में क्या था मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आगे आएगा ये सब, ठीक है। जैसे जैसे ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है केसवन एंड भारती केस, ठीक है, तो ये सब चीजें आएंगी बाद में। बट स्टिल इफ यू हैव इंटरेस्ट टू नो व्हाट आर दीज केसेस, यू जस्ट गूगल दैट एंड रीड दैट व्हाट आर दीज केसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बाद में जब जिस जैसे आगे आएगा उस हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो इन LIC ऑफ इंडिया केस 1995, ठीक है। तो LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में यहाँ पे फिर से उन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब प्लीज रिमेंबर दैट इन बेरी यूनियन केस में बोला था कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन केसवन एंड भारती केस इन 1973 एंड LIC ऑफ इंडिया केस इन 1995, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। केसवन एंड भारती केस में बोला था कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेस है, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यू माइट गेट लॉट ऑफ टैक्स हियर, यू कैन यहाँ पे देखो सब कुछ। रीजन ये है कि मैं लक्ष्मीकांत की बुक कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें जितना कुछ भी दिया हुआ है मैं कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं स्लाइड में डालता हूँ और उसको बताता हूँ, ठीक है। तो इट मे लुक लिटिल बोरिंग एंड यू माइट थिंक दैट क्यों इतना ढेर सारा चीजें ये दिखा रहा है और पढ़ रहा है, ठीक है, आप कह सकते हो, बट मुझे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मोटो ये है कि इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही ना पड़े, क्योंकि आई नो दैट अगर आप लेटेस्ट एडिशन में जाओगे तो उसमें और भी चीजें हैं लेटेस्ट में जो भी चीजें हुई हैं वो सब भी ऐड कर दिया, बट उसको जरूरत नहीं है पढ़ने का। आप कोई सा भी एडिशन उठाते हो, 5th उठाते हो, 6th उठाते हो, 7th उठाते हो, मेन कोर चीज तो वही है जो होता है, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि अब जैसे आप पढ़ने बैठोगे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, 2 महीने लग जाएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर सीरीज में पूरा बुक ही कंप्लीट कर रहा हूँ कि जो भी इसको देख रहा है उसको फिर
बुक डेफिनेटली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, कुछ भी बच नहीं रहा है। ठीक है, मैं खुद से भी एक लाइन पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हो एटलीस्ट उसको। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू, ठीक है, आप एक ही बार पढ़ो उसको, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं हो। उसके बाद फिर लेक्चर सीरीज ये देखो, आप यूट्यूब में ना स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है कि आप 1.25 1.5x में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा है कि स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से देयर विल बी लॉट ऑफ लेक्चर्स। अभी देखिए चौथा चैप्टर है, आई थिंक 25th वीडियो। ठीक है, यूट्यूब में आपको 50 वीडियो में पूरा का पूरा पॉलिटी मिल जाएगा, बट उससे कोई फायदा नहीं होता, आपको दोबारा बुक पढ़ना पड़ता है। इसमें मे भी हो सकता है कि मैं 200-250 लेक्चर्स बनाऊं, मे बी 300 भी हो सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि 76 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 250-300 वीडियोस होंगे, आई नो दैट, लेकिन आप उसको एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो स्पीड बढ़ा के। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, डैम श्योर आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो लोग भी फॉलो कर रहे हो प्लीज बी पेशेंस, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको। इवन कोई भी एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी के अलावा, जहां जहां पे पॉलिटी आता है हर जगह पे इसमें वो सारी चीजें दी हुई हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, एग्जाम के लिए। क्या एनीवे ये सब चीजें मैं कई बार बोल चुका हूँ, अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं इसको बोलना बंद कर दूंगा, लेकिन कुछ नए व्यूअर्स होते हैं जो जिन्हें नहीं पता होता है। ठीक है, तो जस्ट for them, okay, what is in this lecture series, okay, yeah. Now देखिए, like another part of the constitution, preamble was also enacted by the constituent assembly, but after the rest of the constitution was already enacted. ठीक है, और चीजें थोड़ा थोड़ा बता रहा है। और द रीजन ऑफ इंसर्टिंग, अब क्यों इसको डाला गया था ये सही बोल रहे हैं, द रीजन ऑफ इंसर्टिंग preamble at the end was to ensure that, अब देखिए सब कुछ करने के बाद उन्होंने प्रिएम्बल बनाया, ऐसा नहीं कि पहले प्रिएम्बल डाल दिया फिर उसके बाद आर्टिकल्स बनाए, नहीं, पहले सब बना लिया उसके बाद लास्ट में प्रिएम्बल किया। ठीक है, द रीजन फॉर इंसर्टिंग प्रिएम्बल एट द एंड was to ensure that it was in conformity with the constitution as adopted by the constituent assembly. ठीक है, while forwarding the preamble for vote, the president of constituent assembly said the question is that the preamble is stand part of the constitution. The motion was then adopted, hence the current opinion held that the Supreme Court that preamble is the part of the constitution is in consonance with the opinion of the founding father of the constitution. अब देखिए, जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद प्रिएम्बल को लास्ट में बनाया गया, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वोटिंग हुई कि ये whether it has to be adopted and whether it is a part of constitution or not. तो अब ये चीज वोटिंग हुई उसके लिए, तो ये बोला गया yes it is a part of constitution and yes, ओके। तो हमारे जो फाउंडिंग फादर थे उन लोगों ने बोला था yes this is the part of the constitution। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए केशवानंद भारती केस और LIC ऑफ इंडिया केस में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला था कि इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, क्योंकि दिस इज एक्चुअली ओपिनियन ऑफ आवर फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट वगैरह होता है वो ऐसा नहीं होता है कि बस वो ऐसे ही बोल दिए, वो काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं कि ओके इससे रिलेटेड पीछे क्या हुआ है, तो उन सब सारे जैसे बोलते हैं कि सीकर में कड़ी होती है, सारे कड़ी को जोड़ के फिर वो लास्ट में बोलते हैं ओके दिस विल बी द जजमेंट। तो उसी तरीके से इसको भी चूंकि इट वाज द ओपिनियन ऑफ our founding father, so that's why the Supreme Court said that it is an integral part of constitution. However, two things should be noted. First, the preamble is neither a source of power to legislature nor a provision upon the power to legislature. ठीक है, मतलब जो हमारा it is not a source of power and nor the provision upon the power of legislature. It is non-justiciable, that is its provision is not enforceable in court of law. ठीक है, अब it is a not justiciable और ये it is a not enforceable in court of law as similar as fundamental right. ठीक है, तो किसी को ऐसा लगता है कि हमारा प्रिएम्बल वायलेट हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ enforceable। ठीक है, अब ये लाइन जो है
इस चीज को आप देखिए, जो दूसरा पॉइंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 स्टेटमेंट दिया था, एक स्टेटमेंट में ऐसा बोला था कि इट इज इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और पूछा था 3 स्टेटमेंट और थे और पूछा था कि कौन से करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज गलत है, उसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और उससे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे और जो 3 स्टेटमेंट थे वो सही थे। तो अब देखिए सीधा सीधा यूपीएससी में इस स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, बाकी 3 स्टेटमेंट सिंपल था, अगर आप कोई भी उसको पढ़ता है, थोड़ा भी पॉलिटी चाहता है, तो ही और सी कैन से दैट करेक्ट। बट यहाँ पे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इन्फोर्सेबल है या नहीं। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, फंडामेंटल राइट से वॉलेट होता है, तो हाँ, वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बट if preamble is violating, we can't. Okay, so that's why it is not enforceable in a court of law. So please remember this, because already question asked in the UPSC itself. अब ये भी क्वेश्चन उठा था कि ये अमेंडेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब पहले तो है, ठीक है, दूसरी चीज क्या क्या अमेंडमेंट इसमें हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, so the question as to whether preamble can be amended under Article 368 of the Constitution arose for the first time in the historic case of Kesavan Bharati case 1973. It was urged that the preamble cannot be amended as it is not the part of Constitution. The petitioner contended that the amending power of Article 368 cannot be used to destroy or damage the basic element of or fundamental features of the Constitution which are enshrined in the preamble. अब देखिए, जो हमारा बेरी केस हुआ था, बेरी यूनियन केस हुआ था उसमें 1960 में, उसमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस जो हमारा आर्टिकल 368 है उसके हिसाब से भी कैन नॉट अमेंड दैट। ठीक है, बट उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जजमेंट पलटा और बोला कि नो, इट इज प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब चूंकि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा आर्टिकल 368 होगा ये भी एप्लीकेबल होगा। इट मींस इट इज अमेंडेबल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाउ एवर हेल्ड दैट, देखिए ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, is the part of the constitution. The court stated that the opinion tendered by it in the Berry case, Berry Union case 1960 in this regards was wrong and held that the preamble can be amended. Okay, subject to the condition that no amendment is done to the basic features. In other words, the court held that the basic element of the fundamental features of the Constitution as contained in the preamble cannot be altered by the amendment under Article 368. ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको बोला वही चीज है। Okay, बेरी केस में बोला था it is not a part of Constitution. Okay, so in this regard it was wrong, but केशवानंद भारती केस में बोला कि नहीं, this has to be amended, but जो हमारा बेसिक फीचर है, जैसे केशवानंद भारती केस के बाद एक नई चीज निकल के आई थी, दैट वाज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो बेसिक फीचर है, अगर आप ना प्रीएम्बल को अमेंड कर रहे हो तो जो हमारा बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट सुप्रीम कोर्ट हैज बीन सेड। ओके, सो एज पर आर्टिकल 368 इट कैन बी डन, amendment can be done, but our basic features, basic fundamental features cannot be affected by amendment. Okay, so now the preamble has been amended only once so far, 1976 by 42nd Constitutional Amendment Act, which has added 3 new words, that is socialist, secular, integrated to the preamble. This amendment was held to valid. ठीक है, अब इसके बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें 3 नए वर्ड यूज ऐड किए गए इसमें, विच वाज सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। मुझे यहाँ पे कलर करना चाहिए था इसको, बट एनीवे नो प्रॉब्लम। सो प्लीज रिमेंबर 3 वर्ड्स दे हैव एडेड, और सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। देखिए, मैं इसके साथ प्रीवियस क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, स्टेट पीएससीज में आए हुए हैं, इवन यूपीएससी में जो आए हुए हैं, वहां पे काफी क्वेश्चन प्रीएम्बल चैप्टर ही चल रहा है शायद, तो
लॉट ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन, अगर आप प्रियम्बल वाला देखोगे तो ये चीज अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ कौन सा वर्ड आया था, तो अब उसको देखोगे तो ये पूरा याद हो जाएगा आपको। लेकिन ठीक है, नहीं भी याद है तो आप ये याद रखो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच वाज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव। ठीक है, सो दीज 3 words they are added with this amendment. Okay, and this amendment was held to be valid. Okay, so this is the end of the preamble chapter. Now we'll start a new chapter from the next class. Thank you.